Okay, today's lecture we are going to discuss what is a greedy algorithm or what is a paradigm of a greedy algorithm. And then we will take up an example of what is a minimum spanning tree and how it can be solved with the help of certain algorithms that follow the greedy paradigm. So let us start. What is a greedy paradigm? क्या है greedy paradigm? Greedy algorithm is a set of resources that are recursively divided based on the maximum or immediate availability of that resource at any given or stage of the algorithm. तो इसका मीनिंग क्या है? Let us suppose that we are supposed to find the shortest path from one destination to the other, or you want to select a few items for which the price is given so that we are able to get the maximum profit. तो पहली प्रॉब्लम में क्या है, हमने पाथ को मिनिमाइज करना है, दैट मींस वो एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है. सेकंड में हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो इट इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो हमने करना क्या है अंडर द ग्रीडी एल्गोरिथम, रिकर्सिवली वन बाय वन दोनों एल्गोरिथम में सिलेक्शन करना है. सिलेक्शन किस चीज का करना है? इन केस ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम हमें उस एज को सेलेक्ट करना है जिसकी कॉस्ट मिनिमम है, और सेकंड में हमने उस आइटम को सेलेक्ट करना है जिसकी कॉस्ट मैक्सिमम है. दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज ग्रीडी. करंटली हम कौन सा एज या पाथ सेलेक्ट करें कि हमारा पाथ मिनिमम आए, और हम कौन सा आइटम सेलेक्ट करें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम जाए एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इज कॉल्ड द ग्रीडी एल्गोरिथम. और उसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग फर्दर नेक्स्ट सिलेक्शन जो है वो करते हैं बेस्ड ऑन द नेक्स्ट करंट टाइम. इफ वी कैन ऐड टू दैट ग्रीड वी कंटिन्यू. If we cannot add more to that greed, we stop. So what is exactly a greedy algorithm is recursively selecting a resource at any given time that can either help in maximizing or minimizing the optimization function. ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. If I look at another definition, it says greedy is an algorithm paradigm that builds up a solution piece by piece. Piece by piece means recursively solution को piece by piece, one by one develop करता है. तो वो करता कैसे है? Always choosing the next piece. Piece means item or path that offers the most obvious and immediate benefit. यानी हमने सबसे बेनिफिट वाली आइटम को या पाथ को ही सेलेक्ट करना है. No other logic. So the problem is left with choosing the locally optimal solution as the best and hope that it will be the best global solution as well. अब local solution क्या है और global solution क्या है? अगर आपके पास एक बहुत बड़ा पाथ गिवन है एक ग्राफ का, तो बहुत बड़ा ग्राफ है. जब हम लोग कोई भी सिलेक्शन करते हैं और पूरे के पूरे ग्राफ को कंसीडर करते हैं, उसके पास्ट को भी कंसीडर करते हैं, देन वी कॉल इट एज अ ग्लोबल सर्च. यानी हम टोटल सर्च को ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन लोकल सर्च में हम लोग ग्लोबल को ध्यान में नहीं रखते हैं, सिर्फ करंट सॉल्यूशन को, करंट पाथ को ही ध्यान में रखते हैं. बट व्हाट वी आर होपिंग इज दैट दिस लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल आल्सो लीड अस टू अ वेरी गुड ग्लोबल सॉल्यूशन. ग्रीडी एल्गोरिथम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? क्योंकि ये लोकल ऑप्टिमल यानी सिर्फ एक सिलेक्टेड पाथ को ही ध्यान में रखता है, प्लस ये बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन नहीं करता है और इमीडिएट अवेलेबिलिटी को सेलेक्ट कर लेता है, विच रिजल्ट्स इन अ वेरी फास्ट सॉल्यूशन. लेस कंप्यूटेशन, फास्ट सॉल्यूशन. whereas the problem lies with the greedy algorithm is that it is not suitable for all types of problems. कई बार तो ये इतना बुरा रिजल्ट आपको दे देता है विच इज फार अवे फ्रॉम द बेस्ट और द ऑप्टिमल सॉल्यूशन,
and most of the time the greedy algorithm provides close to optimal but very rarely the optimal solution, यानी बेस्ट सॉल्यूशन ये प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन हम फिर भी greedy algorithm को यूज करते हैं because we want to find an answer to the solution in a very quick time. Another definition of the third definition of the greedy algorithm is always make the choice that seems to be the best at that moment. That means we are not concerned about what will happen in the future, but for the time being this particular option looks like the best. हम लोग इसको देखेंगे भी when we will study the minimum spanning tree as one of the examples. This means that it makes a locally optimal choice. So ये local optimal choice को दिमाग में रखता है, global को नहीं रखता है, तो उसको ये hope करता है that it will provide the best global optimal solution as well. So assume that you have an objective function. What is an objective function? Objective function एक वो फंक्शन है which sets our objective, हम चाहते क्या हैं इस एल्गोरिथम से, that can be either to maximize something or to minimize something. ये मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, जैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट को मिनिमाइज करना, उसके लिए हम लोग एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं. एंड ग्रीडी एल्गोरिथम मेक्स ग्रीडी चॉइसेस एट ईच स्टेप, यानी वो सभी स्टेप को कंबाइन करके एक चॉइस नहीं लेता है, वो हर स्टेप के लिए ग्रीडी चॉइस लेता है, वो अगली चॉइस पिछली चॉइस को दिमाग में नहीं रखता है. So I think further definitions are given, but I think we have done enough. So for your reference, these notes will be available, so you can go through these definitions as well. So what are some of the advantages and disadvantages of going for the greedy algorithm for a solution? So if you have a problem and we decide that we are going to go through the greedy algorithm, it is quite easy to come up with a greedy algorithm. Greedy algorithm किसी भी प्रॉब्लम के लिए बनाना सबसे इजी एल्गोरिथम है, क्योंकि वो उस स्टेप का बेस्ट सॉल्यूशन देखती है, ना आगे की कंप्यूटेशन ना पीछे की कंप्यूटेशन. सो वन ऑफ द इजीएस्ट पैराडाइम्स जिसके लिए एल्गोरिथम बनाना सबसे आसान है इज द ग्रीडी अप्रोच. नेक्स्ट इज एनालाइजिंग द रन टाइम फॉर ग्रीडी एल्गोरिथम विल जनरली बी मच इजियर. बहुत इजी है कंप्यूट करना भी, और वैसे भी टाइम जो वो लेता है वो बहुत ही कम लेता है. तो दो बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं, बेनिफिट्स हैं. एक तो है कि इट इज इजी टू मेक अ ग्रीडी एल्गोरिथम फॉर एनी प्रॉब्लम. सेकंड इज एनालाइजिंग द रन टाइम, और द रन टाइम इन जनरल इज मच lesser as compared to other algorithms. The third part is that for greedy algorithm you have to work much harder to understand the correctness issue. What is this correctness issue? जैसा बताया गया है कि टाइम बहुत ही कम लेता है, इजी टू मेक है, और हर स्टेप पर ग्रीडीनेस को यानी लोकल ऑप्टिमल को, सिर्फ उसी स्टेप के सॉल्यूशन को, लोकल को ही दिमाग में रखता है, पीछे क्या हुआ आगे क्या हुआ उसको दिमाग में नहीं रखता है. तो व्हाट इज द करेक्टनेस प्रूफ ऑफ दिस एल्गोरिथम कि ये जो सॉल्यूशन दे रहा है वो करेक्ट है, ऑप्टिमल है या सब ऑप्टिमल है? इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज टोटली हुक्ड अप टू द लोकल ऑप्टिमा. तो कई बार इसके करेक्टनेस को प्रूव करने में देयर आर मेनी इश्यूज बिकॉज द ग्रीडी एल्गोरिथम डज नॉट प्रोवाइड द करेक्ट और द बेस्ट सॉल्यूशन. So how to create a greedy algorithm is very easy. जैसा मैंने बताया कि वन स्टेप पर, उस इंडिविजुअल स्टेप पर बेस्ट ऑप्शन को लेना. सो विच इज दैट बेस्ट ऑप्शन? तो बेस्ट ऑप्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी गिवन इनपुट को असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं. अगर लेट अस सपोज हमें किसी चीज की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, सो दैट जो हमारा फर्स्ट आइटम पिक करते हैं दैट इज द स्मॉलेस्ट आइटम. अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम लोग उसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं, ताकि जो हमारा फर्स्ट आइटम है दैट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट. ओके, सो
ग्रीडी एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप बेस्ट सॉल्यूशन उस टाइम के लिए तभी ले पाएगा अगर हमारा जो इनपुट है वो एक ऑर्डर में बना लिया गया है. दैट ऑर्डर कैन बी आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग. व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज वेरी सिंपल. उस सॉर्टेड या उस अरेंज्ड लिस्ट में से एक एक एलिमेंट को बाहर निकालते जाइए, और अगर वो सॉल्यूशन का पार्ट बनता है तो उसको सॉल्यूशन में ऐड कर दीजिए, अदरवाइज उसको इग्नोर कर दीजिए. अब अगर हम पाथ बना रहे हैं किसी एक नोड से दूसरे नोड पर, लेकिन वो जो हमने एज सेलेक्ट किया है वो उस पाथ का हिस्सा नहीं बन सकता है, तो अल्टीमेटली फाइनल सॉल्यूशन में हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, इवन इफ द लेट्स से द कॉस्ट इज वेरी लेस. इसी तरह से अगर हमने किसी आइटम को बैग के अंदर डालना है, लेकिन उसकी आइटम की जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन उसका साइज यानी उसका वेट आपके बैग के वेट से ज्यादा है, कैपेसिटी से ज्यादा है, तो उस बैग के अंदर वो आइटम जा ही नहीं सकती है, तो नेचुरली हमें उसको इग्नोर करना पड़ेगा. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आप एक ऑर्डर बना लीजिए. सेकंड स्टेप क्या है? आप एक आइटम को वन बाय वन सिलेक्ट कीजिए, फिर उसको आइटम को बेस्ट यानी करंट टाइम में मानते हुए आप उसको सिलेक्ट कीजिए और बैग के अंदर डाल दीजिए. ठीक है. तो ये जो 4 स्टेप्स दिए गए हैं, दीज 4 स्टेप्स आर नॉट जनरल, these are related to one problem which has been defined in here. What is that problem? Being a very busy person, you have exactly T time to do some interesting things. यानी आपके पास total T time है और आपको कुछ interesting things करनी है, और आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं? यू वांट टू डू द मैक्सिमम सच थिंग्स, दैट इज इट. यानी अगर आपके पास 1 घंटा है और आपके पास 25-30 ऑप्शंस है करने के लिए, ऑल आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप आप मैक्सिमम नंबर ऑफ वो एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो आप उन्हीं एक्टिविटीज को चूज करेंगे जो बहुत कम टाइम लेती है, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि कौन सी आइटम ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कौन सी आइटम कम इंटरेस्टिंग है. सिंपल सी बात यह है कि आप उसी आइटम को सिलेक्ट करोगे जो बहुत कम समय लेती है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें असेंडिंग ऑर्डर में उन सभी आइटम्स को प्लेस करना पड़ेगा. ओके. फिर उसमें से वन बाय वन आइटम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो एट दैट टाइम जो भी हमारा उसका टाइम टू कंप्लीट है, कितना टाइम लगता है, उसको करंट टाइम में ऐड करना पड़ेगा और नंबर ऑफ थिंग्स को बढ़ाते जाना है. ये कब तक करते जाना है? जब तक, अगर आपके लेटेस्ट सपोज 1 आवर है, अगर आपकी फर्स्ट आइटम 10 मिनट्स लेती है, दूसरी 20 लेती है तो 30 मिनट्स हो गए, तीसरी भी 30 मिनट्स लेती है तो 60 मिनट्स जो हैं वो खत्म हो गए. तो आप हाउ मेनी आइटम्स, हाउ मेनी एक्टिविटीज यू कैन डू? यू कैन डू 3 एक्टिविटीज. ग्रीडी है, कुछ नहीं सोचा, जो मिनिमम टाइम है उसको पहले उठाया, फिर दूसरी को उठाया और फिर तीसरी को उठाया और आगे बढ़ते गए. ठीक है. तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी कई बार आ जाती हैं, जैसे अगर थर्ड आइटम 35 मिनट्स लेती है और आपके पास 30 मिनट्स ही बैठे हैं, तो आपके 30 मिनट्स जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे. ठीक है. तो बहुत सारे कंसिडरेशंस हैं, हम लोग उनको ध्यान में लेते चलेंगे. सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रीडी अप्रोच. सबसे पहले क्या है? आपको एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी. ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या है कि हाउ मच टाइम डज वन आइटम टेक. यहाँ पर स्टार्ट टाइम गिवन है इस फिगर में और फिनिश टाइम गिवन है फिगर में. तो आप फिनिश माइनस स्टार्ट टाइम करेंगे तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ टाइम. सो यहाँ पर स्टार्ट टाइम 1 है, फिनिश टाइम 5 है, नेक्स्ट आइटम स्टार्ट्स एट 6 एंड उसका फिनिश टाइम दिया हुआ है. तो हमें सब कुछ बताया गया है, तो हमने इसमें से 1 बाय 1 आइटम्स को सेलेक्ट करते रहना है. हम क्यों यूज करते हैं ग्रीडी अप्रोच? इसके रीजंस आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए गए थे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्रीडी अप्रोच. आप वहीं से ले सकते हैं. नाउ दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द ग्रीडी एल्गोरिथम. यानी आप इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए ग्रीडी एल्गोरिथम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ये कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? The first one is called the minimum spanning tree algorithm. इसके लिए एक Prim's algorithm आती है जो greedy method है, and it is used for computing the minimal spanning tree. And this topic is the second part of your lecture. You can use it for traveling salesman problem, graph map
coloring. Then another minimum spanning tree algorithm by Kruskal, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग प्रिम्स भी डिस्कस करेंगे. डिजिक्स्ट्रा मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. देन ग्राफ वर्टेक्स प्रॉब्लम, नैपसैक प्रॉब्लम, ये जो मैं अभी बात कर रहा था ना कि आपके पास एक बैग गिवन है लेट्स से ऑफ 100 kg और आपको उसके अंदर आइटम्स लेकर कहीं जाना है so that you can have the maximum profit. तो उस बैग के अंदर कौन कौन सी आइटम्स जाएंगी, that is the knapsack problem. And the last one is called the job scheduling problem, जब आप जॉब्स को शेड्यूल करते हैं. तो let us start with our next once we have this introduction to what is the greedy problem, let us start with what is the mini spanning tree, what is minimum spanning tree, and what are the different algorithms for the minimum spanning tree. So before we start with what is a spanning tree, we need to understand that a spanning tree should have the following two properties. One is, जब भी हम किसी ट्री को मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए कंसीडर करेंगे तो दैट ट्री शुड बी एन फ्रॉम एन अनडायरेक्टेड ग्राफ. यानी व्हाट इज गिवन एज इनपुट इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ. अनडायरेक्टेड ग्राफ किसको कहते हैं? एक ऐसा ग्राफ जिसकी एज पे डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी बाय डायरेक्शन. अगर आपके पास एक एज है ए टू बी, इसका मतलब क्या है? पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए. I hope it is okay. Next is that graph should be a connected graph. Connected graph क्या होता है? A graph जहां से हम लोग हर vertex से, from every vertex of the graph we can reach to the every other vertex of the graph. तो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं. For example, this is it. So we have a graph like this. Something like this. So one thing is that it is an undirected graph. That is very clear. It is an undirected graph. अगर A to B इस तरह से edge होती तो this is not an undirected graph. This is an example of directed graph. Okay. So what we are given is an undirected graph. So that means it satisfies the property number 1. Does it satisfy the property number 2 that it is a connected graph? The answer is no. Here you can see that I cannot go from F to A. मैं F to A नहीं जा सकता हूँ. मैं ये दो disjoint से sets आ गया. तो what is a connected graph? अगर ये edge add कर देते हैं तो it becomes a connected graph. कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है? आप किसी भी ग्राफ की वर्टेक्स से किसी भी दूसरी वर्टेक्स पर जा सकते हैं. ओके, सो व्हाट वी आर गिवन इज वी आर गिवन एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ. तो व्हाट वी आर गिवन एन undirected connected graph, and what we are supposed to compute is we are supposed to compute a spanning tree out of that. हम उस अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ में से स्पैनिंग ट्री को निकालेंगे. तो व्हाट इज अ स्पैनिंग ट्री? स्पैनिंग ट्री इज सेम एज अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ बट विद मिनिमम एजेस. यानी अगर हमारे पास ये वाला ग्राफ दिया गया है तो क्या हम इसमें से एजेस को कम कर सकते हैं so that we still have the you can say connected graph. ट्राई करके देख लेते हैं. अगर A है, B है, C है, F है, D है और E है. If we do something like this, so how many edges we have here is 1, 2, 3, 4 and 5. पहले कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So how many edges we have reduced? We have reduced 2 edges. And is it an undirected graph? Yes. Is it the connected graph? The answer is yes. So is this a spanning tree? The answer is yes.
So how many edges are there in a spanning tree? Is there any value for that? Yes, the value is there. If we have n number of vertices in a graph, then a spanning tree consists of n minus 1 edges. If you look at this example, the number of vertices we have is 6 and the number of edges we have is 5. So this is the definition of what is a spanning tree. एक spanning tree क्या होता है? So let us see the formal definition of a spanning tree. A spanning tree is a subgraph of an undirected connected graph. यानी given क्या है? Undirected connected graph. उसमें से हमने बनाना है एक सब graph. तो what should it have? It includes all the vertices of a graph with the minimum possible number of edges. That is it. Minimum possible number of edges. So how many minimum possible number of edges for a graph with n vertices? अगर आपके पास एक ग्राफ है जिसकी n vertices हैं, तो the spanning tree for that will have 5 edges. आप एक ग्राफ के लिए कितने possible spanning trees जो हैं वो बना सकते हैं? So if you have a graph with let's say 4 vertices, then the formula for the number of minimum spanning trees is n is power n minus 2. That means for 4, how many spanning trees you can form is 4 power 4 minus 2. That is 4 power 2, which is equal to 16. That means अगर आपके पास एक ग्राफ है जिसके 4 एजेस हैं, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज कैन बी 16, लेकिन हर ग्राफ के स्पैनिंग ट्रीज 16 जरूरी नहीं है बने। तो मैं आपको एक मैक्सिमम फिगर दे रहा हूं कि आप 16 से ज्यादा नहीं बना सकते हैं, बट आप 16 से लेस हो सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल, as you can see at the start we are given a graph with 1, 2, 3, 4, 5 edges, and there are 5 vertices. So that means one edge can be removed. And उसके बाद spanning tree 1, spanning tree 2 and spanning tree 3, 3 spanning tree उन्होंने अलग अलग बनाए हैं, और इनकी number of edges कितनी है? Number of edges have been reduced from 5 to 4. ओके, तो ये 4 कैसे आया? 4 is equals to number of vertices minus 1. इसमें number of vertices कितनी है? A, B, C, D, E. That means total number of 5 vertices are there. तो एक spanning tree में कितनी होनी चाहिए? 4. So what are the properties of a spanning tree? जब आप एक spanning tree बनाते हैं तो उसकी कितनी properties होती हैं? तो स्पैनिंग ट्री बनाते समय जब आप एजेस को रिड्यूस करते हैं या एजेस को सेलेक्ट करते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना है, that the final spanning tree that you form should not have any cycles. So what is a cycle? If there is a path from one node to itself, back to itself, then it is called a cycle. I will give you an example of the same. If you have a graph like this, if you can go from A to B to C to A, then this is a cycle. So one thing that you should avoid is कि जब आप एक spanning tree बनाते हैं तो उसके अंदर cycles नहीं होने चाहिए. Okay, what is the second thing? That any vertex can be reached from any other vertex. जो आपने spanning tree बनाना है, it should retain the connected property of the graph. यानी आप एक नोड से दूसरी नोड पर पहुंच सकते हैं. I hope it is clear. So these are the 2 properties that you should maintain while creating the spanning tree. So this is another example. So what does this tree, this graph contain? This graph contains a set of edges, and for further clarity, आप देख सकते हैं कि एक dark edges है और एक light edges है. This is a dark edge and this is a light edge. Okay, so
if I consider the original graph consists of both the dark and the light edges. यानी हमारे ओरिजिनल ग्राफ के अंदर दोनों लाइट और डार्क एजेस हैं. So what does the dark edges denote? The dark and edges denote a spanning tree or a sub graph. So how many original edges are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. And how many edges are there in the in the spanning tree? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So that means we reduced the number of edges from 15 in a graph to 8 and still maintain that it is a connected graph. How many number of vertices are there? If I count the number of vertices, the total number of vertices is equals to 9. तो spanning tree की property भी define हो गई. That means the number of edges, that is 8, should be 1 less than the number of vertices, that is 9. So this is an example of a graph which has been converted into a spanning tree. The next topic that we have, we won't do the algorithms for the same. So one thing is that we won't do the algorithms for the same, but still let us go through what is the definition of a spanning tree. So let's start with that. So there was some okay, let's go down. What is a minimum spanning tree? A minimum spanning tree क्या है? Minimum spanning tree is a spanning tree but with a different input. अगर आप हमारे एग्जांपल्स में पीछे कोई भी इनपुट देखेंगे तो उसमें एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ दिया हुआ था, लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री में एक हर एज के साथ एक कॉस्ट भी दी गई है या लेबल भी दिया गया है. और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वी कैन क्रिएट द मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज फ्रॉम अ सिंगल ग्राफ. So what is the idea of a minimum spanning tree of a graph is to create a spanning tree with minimum cost of all the edges. यानी अगर हर edge का उस spanning tree में मैं sum करूं तो it should have the minimum cost. So the difference is in the previous graph, as you can see here, there is no cost given. यहाँ पर कोई भी cost given नहीं है edges की, लेकिन यहाँ पर cost given है. तो जब कोई भी कॉस्ट गिवन नहीं होती है तो आप इसमें से एक स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, और जब कॉस्ट गिवन होती है तो आप उसमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं. तो आइडिया क्या है? द मिनिमम स्पैनिंग ट्री जब कोई बनाते हैं तो उसमें जितनी भी एजेस इन्वॉल्व हैं उन सब की कॉस्ट का सम निकालते हैं. अगर मान लीजिए इस ग्राफ के मैं 25 स्पैनिंग ट्रीज बना सकता हूं, तो उन 25 स्पैनिंग ट्रीज की पहले मैं कॉस्ट चेक करूंगा, सम ऑफ द एजेस, कॉस्ट ऑफ द सम ऑफ ऑल एजेस. जिसकी सबसे कम होगी उसी को मैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री मानता हूं. तो इसमें अगर इस एग्जांपल में अगर मैंने देखना हो कि ये वाले स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट कितनी है तो वो कैसे निकलेगी. एक हमने ये वाली एज ली है, द कॉस्ट इज 5. एक हमने ये वाला एज लिया है, द कॉस्ट इज 3. एक हमने ये वाला एज लिया है, द कॉस्ट इज 3. देन दिस वन इज 7. देन दिस वन इज 5 and the next one is 8. The next one is 3 and the last one is
4. So what is the total cost of this minimum spanning tree is 5 plus 3, 8, 11, 11, 7, 18, 18 plus 5, 23, 23 plus 8, 31, 3, 34, and 4, 38. So that is the cost of a spanning tree, this spanning tree. Similarly, can we create other spanning trees? Of course. हमें ये वाली एज की जरूरत नहीं है, इसकी कॉस्ट 5 है। अगर हम लोग इस एज को छोड़कर ये वाली एज कंप्यूट कर लेते हैं तब भी हम 1 तक पहुंच सकते हैं और हमारी कॉस्ट जो है वो 5 -2 यानी कम से कम 3 से रिड्यूस हो सकती है। इसी तरह से क्या और भी ऐसी एजेस हैं जिनको हम लोग छोड़ सकते हैं जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए। 5 to 6 जा रहे हैं तो क्या इसको भी छोड़ सकते हैं? शायद छोड़ सकते हैं। अगर हम 7 to 8 ले लें तो दैट इज इट। सो ये एक स्पैनिंग ट्री है जिसकी कॉस्ट 38 है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मोर स्पैनिंग ट्रीज जिनकी कॉस्ट जो है, जिनकी जो कॉस्ट है दैट कैन बी लेस देन 38। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट, वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द स्पैनिंग ट्री with the minimum cost, and that will be known as minimum spanning tree. So that is the end of the lecture today.